Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Today we are going to study the second part of the chapter Deep Water of Flamingo Class 12th. In the first part we have studied line by line detailed study of this chapter, that the incident that happened in the life of William Douglas. Once, when he was 3 or 4 years old, when he went to the beach of California with his father, and second, when he was 10 or 11 years old, when he decided to learn swim and he went to the YMCA pool. And the accident happened, that person, a brochure boy who was near about 18 years old, he came and he threw him into the deep water, and he was almost died. He was almost drowned in the uh, swimming pool in the deep water, but anyhow he was saved. And what happened when he was saved? And after that there was a type of fear, there was a type of phobia in the life of uh, William Douglas, and at last he decided to overcome his fear. He decided to overcome, to win upon this fear. But how? This is discussed in this video, in this part of video. So let us go and let us start this video. We have also stated that he was unable to enjoy the boating, canoeing, fishing, etc. So what he is going to do to learn the swimming? I used every way I knew to overcome this fear. मैंने हर एक तरह का प्रयास किया. He tried to every way to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. लेकिन यह मुझे पूरी तरह से जकड़े रही. मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा था. Finally, 1 October I decided to get an instructor and learn to swim. और फाइनली मैंने 1 अक्टूबर को एक इंस्ट्रक्टर, एक ट्यूटर कह सकते हैं, एक सिखाने वाला, एक निर्देशित करने वाले को मैंने रखा और मैंने सीखना शुरू किया. आई वेंट टू पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक. मैं पूल पर जाता और सप्ताह में 5 दिन जाकर वहाँ पर सीखता था. 5 days अ वीक, एन आवर ईच डे, एंड एवरी ईच डे, 5 days a week, every each day he learned that an hour. The instructor put a belt around me. मुझे मेरे चारों तरफ एक बेल्ट लगा देता था. A rope attached to the belt went through a pulley. और उस बेल्ट में एक रस्सी बांधता था जो ऊपर एक पुली लगी हुई होती थी. उस पुली से दैट रन ऑन द ओवरहेड केबल, और वह पुली हमारे सर के ऊपर रहती थी, केबल में लगी हुई थी और उसी में वह वहीं से बांध देता था. और ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, और रस्सी का जो छोर था, रस्सी का किनारा था, रस्सी को वहाँ से वह पकड़े हुए था. इसी तरह से जैसे पुली के सहारे से हम लोग ऊपर जो भी इमारत बनाने में, मकान बनाने में, when we construct a building and we take the help of pulley to carry the material from earth to the upward, from ground to the upstair. Such type of pulley he used to give the learning of swimming to writer. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on overhead cable. He held on to the end of the rope and he went back and forth across the pool. इस प्रकार से वह थोड़ा सा आगे करता, पीछे करता, इसी तरह से वह चलाता था. आवर आफ्टर आवर, घंटों घंटों तक ऐसा चलता. डे बाय डे, डे आफ्टर डे, और दिन प्रतिदिन ऐसा चलता रहा. वीक आफ्टर वीक, और कई सप्ताह चलता रहा. इसी तरह से वह सीखता रहा.
On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. और जब भी वह क्रॉस करता, पार करता, तब तक उसके अंदर एक पैनिक, एक दर्द आ जाता था. Each time the instructor relaxed his hold on the rope. हर समय इंस्ट्रक्टर क्या करता, रस्सी को रिलैक्स कर देता, छोड़ देता. एंड आई वेंट अंडर, और मैं नीचे जाने लगता. सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोंज, और मुझे वह डर, वह बचपन का डर, वह स्विमिंग पूल का डर, वह पानी का डर फिर से मेरे अंदर आ जाता और मेरे पैरों को जैसे फ्रोंज कर देता, जैसे मेरे पैर जम जाते, जैसे जड़वत हो जाते थे मेरे पैर. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक. और 3 महीने हो गए थे सीखते, तनाव, टेंशन थोड़ा थोड़ा जाने लगा था. देन ही टाट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल. फिर उसने मुझे सिखाया कि कैसे मैं पानी के अंदर अपना सर रखकर एक्सेल कर सकता हूँ, अपनी सांस को छोड़ सकता हूँ. एंड टू रेस माई नोज एंड इनहेल, और फिर कैसे मैं अपनी नाक को ऊपर उठाकर क्या कर सकता हूँ, वायु को, एयर को कैसे मैं फिर इनहेल कर सकता हूँ. इट इज़ द पार्ट ऑफ स्विमिंग. So he is telling, the instructor is teaching him how to exhale under the water and how to inhale by putting nose upside. I repeated the exercise 100 of time, and he repeats this exercise near about 100 of time. Bit by bit I said part of the panic that seized me when my head went under water. और धीरे धीरे करके, और यह मेरा पैनिक धीरे धीरे और बढ़ जाता जब मैं क्या करता, अपना सर पानी के नीचे डालता था. नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स. और फिर उसने मुझे क्या किया, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, मुझे एक तरफ किया, एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और मुझे सिखाया कि कैसे मैं अपने पैरों से किक कर सकता हूँ. फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, मैंने केवल पानी में किक करना ही 1 सप्ताह तक सीखा. एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरे पैर जैसे मना कर दिए हों ऐसा करने के. बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स हुए. एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में मैं उस पर कमांड पा गया. इस प्रकार से मैं अपने पैर को चला सकता था, पैर चला रहा था कैसे. और 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके उसने मुझे स्विमर बना दिया. एंड when he had perfect each piece, और थोड़ा हर एक पीस में, हर एक पार्ट में उसने जब मुझे परफेक्ट कर दिया, he put them all together into an integrated whole, तब उसने मुझे क्या किया, इंटीग्रेटेड, संयुक्त रूप से, जो पीस में मैंने थोड़ा थोड़ा करके सीखा था, अब उसने मुझे यह कहा कि मैं पूरा इंटीग्रेटेड रूप से उसे क्या कर सकता हूँ, प्रयोग कर सकता हूँ, एक साथ उनका पूरा यूज कर सकता हूँ. In April, he started in October, but he's saying that now in April he said now you can swim. The instructor told him that you can now swim, dive off and swim the length of the pool. अब तुम क्या कर सकते हो, डाइव, गोता लगा सकते हो पूरे लेंथ में, और क्रॉल स्ट्रोकिंग भी कर सकते हो. I did. The instructor was finished. मैंने ऐसे किया. अब इंस्ट्रक्टर का काम समाप्त हो गया था, अब इंस्ट्रक्टर का काम नहीं था, अब मेरा काम था. बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं नहीं फिनिश कर पाया था. आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल. मुझे अभी इस बात का डर था कि क्या मुझे अभी डर लगेगा वह जब मैं पूल में अकेला होऊंगा तब. आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश किया. आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं एक बार गया और फिर दोबारा लौट कर आया. मैंने पूरी तरह से स्विमिंग की. टाइनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, थोड़ा सा डर मेरे अंदर वापस आया. बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, और अब मैं अपनी भवें तनीन करके, फ्रॉनिंग करके डर से कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो. वेल हियर इज टू यू, लुक, देखो तुम. एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं इस तरह से एक बार और पूरे लेंथ में पूल को तैरा. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और जुलाई तक ऐसे चलता रहा. बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं था. I was not sure that all the terror had left. I was not totally sure that I am free from fear and there the terror will not come. About this I was not sure totally. So I went to lake.
मैं कहाँ गया? झील पे गया। वेंट वर्थ इन न्यू हैम्सफायर, न्यू हैम्पशायर लेक गया। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, और कहाँ पर? डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड गया, वहाँ पर स्विमिंग के लिए। एंड स्वम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और 2 मील तक मैंने उस आइलैंड में स्विमिंग की। आई स्वम द क्रॉल, मैंने क्रॉलिंग करके, इट इज़ टाइप ऑफ स्विमिंग, इट इज़ क्रॉल स्विमिंग, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। इस तरीके से मैंने क्या किया, हर एक पार्ट को मैंने यूज़ करके, स्विमिंग के हर एक वे को, हर एक तरीके को यूज़ करके मैंने स्विमिंग की। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार केवल डर आया। साइड स्ट्रोक, सॉरी, व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीचों बीच पहुंचा, मिडल में, आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने अपना फेस नीचे करके बस मैंने बॉटमलेस वाटर को देखा, कुछ नहीं दिखाई दिया मुझे वहाँ। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनीच्योर, थोड़े से मात्रा में मुझे वो पुराना डर सेंसेशन मेरे अंदर आया। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरा, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, क्या लगता है तुम्हें, तुम मुझे कुछ कर सकते हो? इट प्लेड एंड आई स्वम ऑन, और फिर मेरा वह दर्द भाग गया और मैं तैरता चला गया। येट आई हैड रिसीडल डाउट, अभी भी मुझे थोड़ा सा डाउट था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, मैं पहले सौभाग्य में वेस्ट गया। वेंट अप टू द टीटॉन ऑन द कॉन्रेड meadows, up in the Conrad Creek trail to the Midi Glacier, and camped in the high meadows by the side of the warm lake. He is telling about the lake that he went there on the first opportunity to swim there. The next morning I dived into the lake. अगली सुबह कैंपिंग के बाद वह स्ट्राइप किया, डाइविंग किया लेक में, and swam across to the other shore and back, और उस छोर तक गया, फिर वहाँ से वापस आया। जस्ट एज डॉन्क क्रॉम्पन यूज टू डू, जैसा कि डॉन्क क्रॉम्पन ने यूज किया था एक बार इस झील को पार करके फिर दोबारा आने के लिए। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न टू द इको, और उस मैं खुशी से जो मैं चिल्लाया, जो आवाज़ निकली, उसका इको, उसका प्रतिध्वनि दोबारा मेरे पास आया। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और मैंने विजय प्राप्त कर ली थी किस पर? अपने इस डर पर, अपने इस पानी के डर पर। आई कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैं। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत बड़ा मीनिंग दे दिया, बहुत डीप मीनिंग दे दिया। As only those who have known stark terror and conquered it can appreciate, केवल वही लोग जो ऐसे डर को जानते समझते हैं और ऐसे डर पर विजय प्राप्त किए होंगे, वही लोग मुझे समझ सकते हैं, वही मेरी प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में बहुत बड़ी शांति है। एज ही हैज रियलाइज्ड, एज ही हैज फेल्ट that when he was near about to drown, he was near about to die, that there was type of peace. He felt that there is his mother came there, and he was patting on his head and saying about the peace of that time. So he says that there is death, there is peace. There is terror only in the fear of death. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मौत में तो शांति है, हमें डर तो केवल मौत का है। मौत में बड़ी ही शांति है, हमें डर केवल मौत का है। मौत आने के बाद तो बहुत ही शांति है, लेकिन डर और आतंक, टेंशन, प्रॉब्लम किसकी है? मौत की है। हमें हमेशा मौत का एक डर बना रहता है, इसीलिए हम ज़्यादा परेशान रहते हैं। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, शायद रूजवेल्ट रूसो इस बात को जानता था जब उसने ये कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें अगर किसी से डरना चाहिए तो हमें डर से ही डरना चाहिए, क्योंकि डर ही ऐसी चीज़ है, अगर वो हमारे पास आती है, हम तक आती है, तो हम परेशान हो जाते हैं। इसीलिए हम डरें तो किससे? डर से डरें, ताकि डर के पास हम ना जा सकें, यानी डर हमारे पास ना आ सके। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ।
हमें अगर किसी चीज़ से डरना चाहिए, हमें मौत से नहीं डरना चाहिए, हमें डर से डरना चाहिए कि हमारे पास डर ना आ सके। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम किसी चीज़ से डरे ना। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, कि अगर हमें किसी चीज़ से डरना है तो डर से ही डरना है, क्योंकि अगर व्यक्ति डर गया सो मर गया। तो डरना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि डर हमारे पास आए ही ना, क्योंकि डर के आगे जीत है। सो because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, मैंने दोनों चीज़ का अनुभव कर लिया था, मृत्यु का भी और डर का भी। और डर से कैसे मृत्यु का डर कैसे प्रोड्यूस होता है ये भी। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, और किस प्रकार से जो जीने की इच्छा जगती है तीव्रता से, उसका भी मैंने क्या किया था, अनुभव कर लिया था। एट लास्ट आई फेल्ट released, free to walk to the trails and climb the peaks and to brush aside fear। इस प्रकार से अंत में मैं जीत गया उस डर से, और मैं इन सब से फ्री हो गया, और मैं अकेले घूम सकता था, अकेले तैर सकता था, और पहाड़ियों पर भी चढ़ने लगा। इस प्रकार से विलियम डगलस इज मेंशनिंग दैट हाउ ही conquered, how he won up, how he won over the fear, and that fear is about the fear of water. So in this stanza, in this chapter, as we have studied, we find out about this is type of subjective, this is the autobiographical chapter, and the writer William Douglas mentioned about and not only one incident of childhood, and when he was 10 years old, and that accident happened into the pool when a big brusher boy tossed him into the pool and he was near about die. So this chapter gives a lesson that fear is not a problem, but fearing from fear इज़ अ बिग प्रॉब्लम। डर कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन डर से डरना जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। फॉर दैट ही टूक द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, एंड ही वर्कड हार्ड, and at last we found that he was able to win, he was able to conquer the fear of water. And he also says that two important line here at last, that there is a in death there is peace, मौत में बहुत बड़ी शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और डर तो बस केवल हमें मौत का डर होता है, मौत के डर का हमें आतंक होता है। मौत का डर का आतंक ना हो, मौत का डर ना हो, तो किसी भी प्रकार का हमें डर नहीं होगा। और एट लास्ट ही आल्सो सेज दैट एज रूजवेल्ट सेज दैट ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हमें अगर किसी चीज़ से डरना है तो हमें किससे डरना है? ऑल वी हैव टू फियर इटसेल्फ। अगर हमें किसी चीज़ से डरना है तो हमें डर से ही डरना है, क्योंकि ये जो डर है, अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का डर होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम डर से डरें, ताकि डर से डरें मीन्स ये नहीं कि हमें डर से डरना चाहिए, डर को भगाना नहीं चाहिए, बल्कि इसका कहने का तात्पर्य है कि डर ऐसा कुछ करें कि हमारे पास डर ना आ पाए, क्योंकि डर आएगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपना आगे का कार्य नहीं कर पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू डू in future anything if we have a fear, we have to afraid to someone or something. So it is important that firstly we have to find out our fear, and we have to do something to cope up with this fear, and at last anyhow we have to win, we have to cross, we have control, we have to conquer this over this fear, as here the writer William C. Douglas did. And he was at last, he says that at last I felt released, free to walk the trails
and climb the peaks and the brush aside fear. एक तरफ रख दिया इसने, किसको? डर को एक तरफ रख दिया और पूरी तरह से सफल और सक्षम भी हुआ। क्या करने में? पूरी तरह से सफल हुआ, सक्षम हुआ। He was able to conquer. So this was your chapter second part, and we will meet in the next video. Okay, thank you.